بلکہ ایک نئے مذہب کی جو ہے وہ تشکیل کر رہا ہے. جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے اور جس طرح کے وہ پوسٹر لگا رہا ہے کہ جو ہے جس طرح بنی اسرائیل گزرے تھے اور سمندر پھٹ گیا تھا، وہ پوسٹر کی جگہ وہاں پہ جو فلموں میں حضرت موسیٰ کی تصویر ہے وہاں پہ اپنی تصویر لگا کے جو ہے نا وہ عبور کر رہا ہے سمندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، این بی نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرامین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان کا جو انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی ہے. جبکہ ایک طرف لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں اور دوسری طرف لوگ ادویات نہ ملنے کی وجہ سے مختلف امراض کا شکار ہو کر مر رہے ہیں، اور کہیں لوگ جو ہے وہ بے سر و سامانی کی حالت میں سڑکوں پر پڑے ایک وقت کے نوالے کے لیے بھی پریشان ہیں. لیکن عمران خان اور جو ان کے جو ہواری ہیں ان کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت صرف چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی ہے. اور مطلب اس چیز کو اتنا متنازع بنا دیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی کو چیف آف آرمی اسٹاف بنوانا بھی چاہ رہے تھے تو اب وہ شخص بہت پیچھے چلا گیا. اس شخص کی زندگی اس شخص نے برباد کر کے رکھ دی. اور میں بات سیدھی کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں جنرل فیض کی. تو جنرل فیض کا نام لے لے کر عمران خان نے اس کو اتنا بدنام کر دیا، اتنا اس کو جو ہے وہ پولیٹیکلی اس کو مطلب اس کو پولیٹیسائز کر دیا کہ اس وقت وہ چاہیں بھی تو ان کا نام چیف آف آرمی اسٹاف کی فہرست میں فی الحال نہیں آ سکتا. تو بہرحال اس وقت جو ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ عمران خان اور ان کی حواریوں کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا، پاکستان کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی ہے. اس وقت میں تو یہ چاہتا ہوں یا میری یہ خواہش ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے یا ایسا کوئی اگر پروویژن ہے تو اس طرح کر دیا جائے تاکہ بہت ساری ساریاں ختم ہو جائیں. یا تو چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اس کو وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ دے دی جائے، یا پھر جو آئندہ کا چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا اس کا جو باضابطہ طور پر اعلان کر دیا جائے، یعنی اس کے نام کا اعلان کر دیا جائے تاکہ کم سے کم یہ فتنہ، یہ فساد، یہ شر اور یہ سیاست، یہ ڈرٹی پالیٹکس، یہ میر جعفر، یہ میر صادق، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. اوروں کو تو ٹھیک ہے، عمران خان تو جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے. آج ایک بہت اہم منجے ہوئے اور سینئر سیاستدان اور سینئر قانون دان اور انتہائی مطلب میرے لیے قابل عزت رہے ہیں ہمیشہ، جناب اعتزاز احسن صاحب، آج انہوں نے مطلب ان کو پتہ ہے، وہ اس پولیٹکس کا اور اس گیم کا حصہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ جتنے بھی کیسز بنتے ہیں وہ ریئل اس پہ نہیں بنتے. یہ صرف جو ہے وہ ایک وکٹمائزیشن ہوتی ہے اور مختلف اداروں کو ٹولز کے طور پر استعمال کر کے ان کو دوسروں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. تو بہرحال آج چودھری اعتزاز احسن صاحب نے اب مطلب مریم نواز اور شہباز شریف اور نواز شریف اور ان کے حوالے سے ایک اہم اور ایک بہت بڑی شخصیت پر الزام لگا دیا، الزام عائد کر دیا. اب انہوں نے کیا کہا ذرا خود سن لیجئے. کوئی شک، ورنہ یہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، یہ مقدمے تو آپ کے میں جس طرح کسی کی تلی پہ لکھے ہوئے ہو اس طرح یہ لکھے ہوئے مقدمے جن سے ان کو باجوہ صاحب نے نکالا ہے. اور باجوہ نے ایک بہت بڑا جرم کیا یہ اس کو ان کو اس طرح چھوڑنا. ناظرین، ایک اور اہم فیصلہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے سامنے آیا، جس میں جو ہے وہ وزارت داخلہ کی طرف سے ضمنی انتخابات اور بلدیاتی انتخابات کو مؤخر کرنے کی درخواست کی گئی تھی. تاہم جو ہے وہ آج گزشتہ روز بھی الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا اور لیکن اس میں الیکشن کمیشن کے ہی افسران تھے. لیکن آج ایک اور اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو باقاعدہ بلایا گیا اور اجلاس میں شرکت کی گئی. اور اجلاس میں باقاعدہ شریک ہونے کے بعد اور تفصیلی جو ہے وہ غور کرنے کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ضمنی انتخابات کی جو تاریخ 16 اکتوبر تھی وہ 16 اکتوبر کو ہی ہوگی، اور بلدیاتی انتخابات کی جو تاریخ 23 اکتوبر مقرر تھی وہ اسی تاریخ پہ ہوں گے کراچی ڈویژن میں.
तमाम NA-45 के जो 16 को इंतखाबात होने थे वहाँ की सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए वहाँ इंतखाबात बाद में होंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले ने हुकूमत को बहुत धचका पहुँचाया है, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस सूरत हाल को जो इस वक्त चल रही है, यानी जो लॉन्ग मार्च और धरनों की जो पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स के नाम पर या उस पॉलिटिक्स यानी उसको काउंटर करने के लिए जो एक हिकमत अमली बनाई थी, उस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले ने पानी फेर दिया है। ताहम जो है वो अब देखना ये है, क्योंकि अगर ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो भी सिर्फ 16 नवंबर को ही होंगे, यानी एक रोज़ ही होंगे, और अगर 23 अक्टूबर को इंतखाबात बल्दियाती इंतखाबात कराची डिवीज़न में होते हैं तो भी एक ही दिन के लिए होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के लिए फोर्सेस की वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। ताहम ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हुकूमत को फिर भी इनकी जो खिदमात हैं वो लेनी पड़ेंगी। तो नाज़रीन, इससे हटकर हम एक और बहुत बड़ी बात हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि आज इमरान खान ने जो खिताब फरमाया, उस खिताब में एक तो उन्होंने वही जो टेक्निक यूज़ करते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग वाली, उसका जिक्र किया। उस पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सोलो रिकॉर्डिंग बहुत इजी है, लेकिन एक मजमे में 4-5 लोग जहाँ बैठे हों या 3-4 लोग बैठे हों, वहाँ सोलो रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल है। और आज उन्होंने कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसी तरह की जा रही है और बड़ी गंदी गंदी वीडियोस बनाई जा रही हैं। ये सारे चोर जमा होके हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। और वो क्या कर रहे हैं? गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं। गंदी गंदी वीडियो, वो डीप फेक वीडियोस मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस और फिर टेप्स दिखा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। तो गंदी गंदी जो वीडियोस बनाई जा रही हैं उसका तो हैकर 3 दिन पहले ऐलान कर चुका है, और मेरे ख्याल में कल से हैकर जो है वो वीडियोस जारी करना शुरू कर देगा। और उन्होंने जो है वो एक वीडियो तो कल जारी की थी, आपने देखी होगी, आपके अपने चहीते इफ्तिखार अपना फवाद चौधरी साहब की, और इस वक्त भी आप एक नज़र देख लें। इसके अलावा जो उन्होंने कासिम सूरी के जो तस्वीर जारी की हैं, ज़रा वो भी देख लें, और हैकर का जो ट्वीट है वो भी देख लें। नाजरीन, इन चीज़ों से हटकर अगर हम देखें तो समर अब्बास ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। मैं तो सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं, और शायद आपने भी सुना हो। अब इसकी हकीकत क्या है ये मैं नहीं जानता, और ये सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन एक नज़र आप इस क्लिप को खुद सुन लें। जो की रहनुमा है उनसे बढ़कर हम जिन्स परस्ती का इल्जाम आप पे इमरान खान साहब पे और उनके ऊपर तो प्राइमरीली उनके ऊपर लगाया इमरान खान साहब के ऊपर, और फिर उसको बाद में अप्लाई किया है कि इसीलिए वो हमें इतनी अटेंशन देते हैं प्रिटी बॉयज लाइक हमजा अली वासी और मुराद से, क्योंकि उनके ये इंटेंशंस हैं। अब आई डोंट नो उसको कैसे आप वर्ड्स में डालेंगे। इसके अलावा मुझे नहीं पता, मैं इसका आपसे इसकी तरदीद लूं, तस्दीक करूं मैं इस चीज की, मतलब ये क्या सारी बातें जो लिखी गई हैं कि क्या इल्जाम की हैसियत? आप सही कह रहे हैं, मैं तो उसकी तस्दीक कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ मुझे अल्फाज वो नहीं मिल रहे कि उसको कैसे मैं बताऊं कि इखलाकी लिहाज से सही जो अल्फाज होता है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि बेसिकली हम सारे हम जिन्स परस्त हैं। इमरान खान साहब भी, उनका दोस्त गोल्डी भी, मैं भी, मुराद है कि आपको और मुराद। नाज़रीन, जो कुछ हमजा अब्बासी कह रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम ये मुतवातिर देख रहे हैं, और जो हैकर है उसकी तरफ से भी ये चीज़ें कही जा चुकी हैं, और वाज़े तौर पे इन ऐसे ट्वीट्स किए जा चुके हैं। उन ट्वीट्स में इनके नाम लिए जा चुके हैं, और उनके हैप्पी आवर्स का मामला है, और कहाँ कहाँ ये लोग क्या क्या चीज़ें करते रहे। और मैं तो यही कहूँगा कि आज मुझे एहसास हो रहा है कि इन्होंने ट्रांसजेंडर बिल जो है उसकी इतनी हिमायत क्यों की, और ट्रांसजेंडर बिल में जो इन्होंने तरमीम करवाई, और जिस तरह इस टाइप के लोगों को प्रोटेक्शन फराहम करने की कोशिश की, उसके पीछे के असल मकासद क्या थे वो आज मैं समझ रहा हूं। किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। और वो क्या कर रहे हैं? गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं,
गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं। नाजरीन, आपको पता है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले ही पंजाब में एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होनी है, और वो तब्दीली है वजीर आला के और वह अपना पंजाब हुकूमत की तब्दीली है, और हुकूमत किसको मिलनी है, किस तरह क्या होना है, इस पे गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ से लंदन में मुज़ाकरात जारी हैं, जहां अलीम खान भी मौजूद हैं और ओन चौधरी भी मौजूद हैं और नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज ये भी मौजूद हैं, और इस बीच में ऑनलाइन भी कुछ जो है वो कुछ शख्सियात को लिया जाता है, उसमें वीडियो लिंक के जरिए शहबाज शरीफ भी शिरकत कर लेते हैं, या फिर जो पार्टी के दीगर रहनुमा है वो भी शरीक हो जाते हैं। तो उसमें अब इस वक्त हतमी तौर पे क्या होने जा रहा है, और आखिर इस मामले को तूल क्यों दी जा रही थी, आखिर क्यों इस मामले को फौरी तौर पे या मतलब एक ही बैठक में ये मामला हल हो जाना था। तो आखिर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है कि वजीर आला कौन होगा, कम से कम हमजा शहबाज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसलिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बस कैसी रही मुलाकात? चौधरी साहब, जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से आ रही हैं ये? थैंक यू वेरी मच, लेकिन आज कुछ ना ही पूछे सर, हल्के से को बता दीजिए, थोड़ी बहुत की बातचीत हुई है लंदन का मौसम में सारे मौसम। तो क्या 1.5 घंटे से आप अंदर है, कुछ पंजाब हुकूमत के हवाले से कोई बातचीत? दुआ को है कि नहीं है, सब जल्दी पाकिस्तान आएंगे। अच्छा, उन्होंने कभी बात हुई इस हवाले से? कब आ रहे हैं मियां साहब पाकिस्तान? बताया आपने? उन्होंने बताया पाकिस्तान वापसी के हवाले से इंशाल्लाह जल्दी नहीं है, सब पाकिस्तान आएंगे। अच्छा, और हम तो दुआ को है कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान आए। पाकिस्तान को मेरे साथ की जरूरत है। और मतलब चौधरी परवेज इलाही ने भी वहाँ पे जाके मुलाकात की थी, और यहाँ तक कि परवेज इलाही ने कहा था कि आप मुझे वजीर आला बना दें और मैं आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो नाजरीन, ये वही परवेज इलाही है जिसने इमरान खान को कहा था कि जो तुसी को मैं हाजिर हाँ, तो उन्होंने हाजिर होके दिखाया। उसने फराह गोगी के सारे केस ख़त्म करके दिए, उसने बुजदार के केस ख़त्म करके दिए, उसने करप्शन के जितने भी केसेस थे वो सारे ख़त्म करके दिए, उसने नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवाया, और सब कुछ वो करता रहा, और अभी तक वो सिलसिला जारी है। और यहाँ तक कि वफाकी वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी इस वक्त इनके लिए बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। तो बहरहाल आखिर वज़ीर आला कौन होगा, और इस हवाले से बहुत गहराई से और बहुत संजीदगी से इसका जायज़ा लिया जा रहा है। ताहम ये तो मैंने जिस तरह कहा, ये तो तय है कि जो भी फैसला होगा वो इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च के ऐलान के फौरन बाद होगा, क्योंकि इमरान खान को पंजाब से मूव नहीं करने दिया जाएगा, और पंजाब से सारे रास्ते इनके बंद कर दिए जाएंगे। और अगर हुकूमत को इस वक्त ज़रूरत पड़ी, अगर इमरान खान फौरी तौर पे कोई ऐसी तारीख का ऐलान कर देते हैं, जिस तरह कल मैंने कहा था, इमरान खान के जो जत्थे हैं वो इस्लामाबाद पहुंचाए जा चुके हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, और जो मुख्तलिफ किस्म के डंडे हैं या जो भी इस तरह की चीज़ें वो भी इस्लामाबाद पहुंचाई जा चुकी हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल इस्लामाबाद की, यानी डी चौक के करीब के जितने भी रिहायशी इलाके हैं, वहाँ मुख्तलिफ बेंगलोज में और मुख्तलिफ मकामात पर उन लोगों को रखा गया है। तो अब अगर इमरान खान ऐलान करते भी हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, धरने का ऐलान करते हैं, तो हुकूमत बाहर और अंदर दोनों तरफ से मुकाबला करने की हिकमत अमली मुरतब कर चुकी है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर हंगामी तौर पे ऐसा कुछ भी ना हो सका, तो फिर वफाक बिल आखिर पंजाब में गवर्नर राज के नफाज का भी फैसला कर चुकी है। यानी अगर ऐसा कुछ हुआ तो फौरी तौर पे अगर सूबाई हुकूमत वफाक के अहकामात को मुस्तरद कर देती है और वफाक के सामने तसादुम में आ जाती है, तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मौजूद है कि पंजाब में जो है वो गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त जो चीज़ें या जो मामला हो रही हैं वो आपके सामने हैं, और बहुत बुरी सिचुएशन पैदा हो रही है। और मतलब हैरत की बात यह है कि जिस तरह मैंने इब्तदाई में कहा कि लॉन्ग मार्च अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनातियाँ क्या पहले नहीं होती रहीं? पहले कभी नहीं होती रहीं? क्या पहले तैनाती जो होती थी क्या वो किसी और तरीके से होती थी? अब किसी और तरीके से हो रही है। यही एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो प्रोसीजर है
वो प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। इसमें परेशानी की बात क्या है? और सबसे इसमें हैरानकुन बात यह है कि इदारों में तसादुम किसी सूरत हाल पैदा करवाना, और जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दो टोक अल्फाज में कह दिया, लाउड एंड क्लियर कह दिया कि ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और उसके बाद भी इमरान खान अगर बाज नहीं आते तो फिर इसका मतलब ये है कि इमरान खान इस वक्त फुली तौर पर इंडिया के एजेंडे पे चल रहे हैं। और जिस तरह इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो, पाकिस्तान सियासी तौर पे मुस्तहकम हो, पाकिस्तान मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो, इसी तरह इमरान खान भी वही सब कुछ कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। और इस वक्त यूँ समझ लें कि हमारे पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी पैदा हो चुका है, और ये भी किसी सूरत में पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देगा। तो इसलिए जो है वो हुकूमत भी तैयारी कर रही है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ऐसा कोई प्रोविजन है तो इन तमाम क्या साराइयों का गला घोंट दिया जाए, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होगा नया, उसका वक्त से पहले उनके नाम का हतमी तौर पे ऐलान कर दिया जाए, ताकि जिसके जहन में कोई भी वहम और गुमान मौजूद है तो उसका वो दूर हो सके, और ये जो एक अफवाहों का बाजार गर्म है ये भी थोड़ा सा ठंडा हो सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।